امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس، اور آج کا ٹاپک ہے نزول روح القدس کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئیاں۔ ان پیشن گوئیوں کے تعلق سے آج ہم سیکھ رہے ہیں، اور ہمارے تینوں مہمانوں نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی۔ بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر گلفام لطیف صاحب بہت اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہے تھے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے روح کو ہر فرد بشر پر انڈیلیں گے، نازل کریں گے۔ ہم ان سے ہی پھر جانیں گے، سیکھیں گے اس حوالے سے کہ وہ مزید اس حوالے سے اس موضوع پر، اس ٹاپک پر کیا کہتے ہیں۔ جی تھینک یو پر صاحب، میں بات کر رہا تھا کہ خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنا روح ہر فرد بشر پر نازل، اور ہر فرد بشر سے کچھ لوگ اس بات کو لیتے ہیں کہ شاید خدا نے داؤد کے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم اس پر غور کریں، روح القدس کی آمد اور نزول سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں پر کرم کی نظر کی ہے۔ واہ، گریٹ۔ روح القدس کی آمد اور نزول اس بات کی عظیم ثبوت ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا ہے، خدا نے ان کا حال دیکھا ہے۔ جس طرح خشک حالی خدا کی ناپسندیدگی کا ثبوت تھی، اسی طرح روح القدس کی بخشش خدا کی پسندیدگی کا ثبوت ہے۔ واہ۔ اور یہاں پر خدا نے یہ وعدہ کیا، یہ پیشن گوئی یوئیل نے دی، اور میں نے بتایا کہ یہ کسی مشن کی نہیں، یہ خدا کی بات یہ ہے۔ بڑی مجھے اچھی لگی آپ کی بات کہ کئی دفعہ کچھ لوگ اسے مخصوص تنظیموں یا فرقوں سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام۔ اگر ہم ان باتوں پر غور کریں، یہاں تک ہمیں اسی طرح لگتا ہے کہ خدا کا بندہ یہ جو نبوت کر رہا ہے یا پیشن گوئی دے رہا ہے کہ ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ یہاں پہ وہ بیٹے یعنی خاندانی طور پر بات کر رہا ہے۔ بالکل۔ اس کے آگے بڑھیں، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ یہاں پہ آگے ایک بات کھلتی ہے، میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ پھر سب کے لیے، تمام امتوں کے لیے، تمام اور دنیا کے سارے انسانوں جن کو خدا ہمارا بلاتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو یہاں پر جو بات ہے کہ خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ روح القدس تمام ان لوگوں کو ان پر نازل ہوگا جو خدا کے پاس آئیں گے۔ اور بیٹے اور بیٹیوں کی نبوت کے بارے میں آپ کو پر صاحب یہ بات آپ کے گوش گزار، اپنے ناظرین کے گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دعا تھی موسیٰ کی، گنتی کی کتاب میں اس نے کہا کاش کہ تم سب نبی ہوتے۔ واہ۔ اور یہ پروفیسی، یہ دعا کا خدا نے جواب دیا کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب، یعنی کہ بوڑھوں میں اتنی قوت نہیں ہوتی، اس لیے خدا نے ان کو کہا یہ خواب دیکھیں گے، جوان قوت والے ہوتے ہیں اور وہ رویا دیکھیں گے، وہ ویژن پہ کام کریں گے۔ اور جب بات آتی ہے غلاموں اور لونڈیوں پر روح نازل کرنے کی، وہاں پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ خدا ہر اس فرد بشر پر یہ روح القدس نازل کرے گا جو خدا کے پاس آئے گا۔ اور جب یہ نبوت پوری ہوتی ہے اعمال کی کتاب میں، تو وہاں پر پطرس کہتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا۔ آخری دنوں کی میں تھوڑی سی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری دنوں سے مراد ہے یسوع مسیح کا آسمان پر صعود فرمانا، آسمان پر جانا، اور یسوع مسیح کی آمد جب دوبارہ آئیں گے۔ یہ اس کے درمیان کا سارا دورانیہ ہے۔ بالکل۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیسیائی طور پہ صرف شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا اور اس کے بعد اب نہیں ہے، اس کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ یسوع مسیح کے آسمان کے جانے کے بعد 10 دن بعد روح القدس عید پینتیکوست کے دن نازل ہوا، اور یہ نبوت، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور یہ سلسلہ جاری ہے جب تک یسوع مسیح آسمان پر نہیں آئے۔ واہ واہ، دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ واہ، گریٹ۔ روح القدس خدا ہے۔ بالکل۔ بہت سے لوگ اس کو کوئی آندھی، اس کا ترجمہ ہے، مگر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی طاقت ہے، بجلی ہے، قوت ہے۔ یہ خدا ہے۔ آمین۔ اور ہمیں بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں، جب یسوع المسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، جب اس نے بپتسمہ لیا
तो आसमान से खुदा ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है Praise God. जिससे मैं खुश हूँ। और खुदा का बेटा पानी में खड़ा हुआ था और रूह कुदस रूह को कोई नहीं देख सका, ना आज तक किसी ने देखा है, मगर उस वक्त रूह कुदस ने फिजिकली तौर पर अपने आप को जाहिर कर दिया। जब यीशु मसीह पर रूह कुदस नाजिल हुआ तो वो अपने आप को काबू ना रख सका और उसने अपने आप को फिजिकली तौर पर जाहिर कर दिया। वो अंबिया पर आता था, नाजिल होता था और चला जाता था, मगर जब यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए तो रूह कुदस फिजिकली तौर पर इस दुनिया में दिखाई दिया, नजर आया। तो इस बात से हमें पता चलता है जिस रूह कुदस का खुदा वादा कर रहा है वो कोई आंधी, ताकत या बिजली नहीं, बल्कि वो खुदा है। वो खुदा का तीसरा अकनूम है और वो साहिब इख्तियार, जिस तरह खुदा हमादान है। हाँ। तो वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और रूह कुदस की बदौलत खुदा अपने लोगों पर नबूवतें, नेमतें रूह कुदस की नाजिल करता है। आमीन, वंडरफुल, बहुत अच्छे जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की पास्टर गुलफाम ने, मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो सबसे आला और ख़ूबसूरत बात मुझे लगी वो ये कि उन्होंने कहा कि ये तालीम किसी ख़ास तबके या ग्रोह की नहीं है, किसी मिशन की नहीं है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस की तालीम है। अब मैं चाहूँगा कि बुज़ुर्ग पादरी साहब जनाब पास्टर फलक शेर साहब हमारे सीनियर पास्टर हैं और PMI टेलीविज़न के साथ बहुत वाबस्तगी है, भाई साहब मज़ीद क्या कहेंगे आप इस हवाले से? डॉक्टर साहब, हम सब का सीनियर जो है ना जी, वो रूहुल कुद्स है। हालेलुया, इसके बारे में हम बातचीत कर आप भी रहे हैं, सीनियर हैं जी हमारे बुज़ुर्ग, वही हमें लिए फिरते हैं। थैंक यू। बात कर रहे थे जी। योएल की नबूवत पर। पादी साहब, योएल नबी ने जो नबूवत की है, जी, योएल इब्रानी लफ्ज़ है, इसका मतलब है यहोवा खुदा है। वाह, यहोवा खुदा खुदा है। है। तो इसका मतलब फिर ये यूँ हुआ कि खुदा तो सारी कौमों का है, तो रूहुल कुद्स भी सारी दूसरी कौमों कौमों के का। लिए है। बिल्कुल बिल्कुल सही। खुदा की सारी बरकतें जो उसने अपने लोगों पर नाजिल की हैं वो सब के लिए है, लेकिन उसका तरीका है जो उसके बेटे पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पर। जो कोई, हम सब जो कोई थे, कहाँ कहाँ से हम आए हैं, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से रूहुल कुद्स की मेहरबानी से आज हम मुक़द्दसों में शामिल हैं। वाह, रूहुल कुद्स की हम बात कर रहे थे। योएल ने कहा हर फर्दो बशर पर, जैसे पादरी गुलफाम साहब ने भी बड़ा अच्छा प्रीच किया है, हर फर्दो बशर पर मैं अपनी रूह नाज़िल करूँगा। इस नबूवत को कब पूरा हम देखते हैं? जब इमाल की किताब उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं तो पहली आयत में लिखा है, तो वो सब एक जगह जमा थे। वो ये शागिर्दों की बात है, ईमानदारों की बात है, ये 120 थे, एक जगह जमा थे, रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ। जी, और लिखा है तीसरी आयत में, और उन्हें आग के शोले की सी फाटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उन में से हर एक पर ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बात कर रहे हैं हम रूहुल कुद्स का नजूल। जी, जैसे पादरी गुलफाम साहब ने भी बात की है, तो मैं भी ये कहता हूँ, ये रूहुल कुद्स जो है हज़रत नूह की सारी नस्ल के लिए है। 120 लोगों ने रूहुल कुद्स पाया और वो गैर ज़बानें बोलने लगे। पादरी साहब, अगर हम पेंतीकोस्त के नज़ूल की बात करें, बिल्कुल ठीक है, तो जैसे हर फर्दो बशर पर इमाल की किताब में अगर हम देखें 10 बाब उसकी 34 आयत, तो कर्नीलियस मसीही नहीं था, गैर मसीही था। जी जी बिल्कुल। लिखा है कि उसकी दुआ सुनी गई। तो पतरस जल्दबाज था, लेकिन रूहुल कुद्स से मामूर था। 34 आयत में लिखा है, पतरस ने ज़ुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। योएल ने क्या कहा था? मैं हर फर्दो बशर पर, जी जी बिल्कुल, हर फर्द बशर पर बिल्कुल नाज़िल करूँगा। तो फिर लिखा है 10 बाब की 44 आयत 47 आयत तक पढ़े, तो पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ।
Praise God. हालेलुया। गैर कौम के लोग सब बैठे हुए थे, जी जी। मुख्तलिफ कौमों के लोग बैठे हुए थे। रूहुल कुद्स नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। वहाँ उम्मतों के लोग थे, मसीही नहीं थे। जब वो कलाम कर रहा था तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ। अगर इमाल की किताब पादरी साहब उसका 11 बाब 15 आयत को हम पढ़ें तो पतरस रसूल ने इस बात को वाज़ह किया है जो यूएल नबी ने कही जी। कि हर फर्दो बशर पर रूह नाजिल करूंगा। जब मैं कलाम करने लगा, पतरस खुद कह रहा है, जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुद्स उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। 120 की जमात पर। इमाल की किताब उसका 19 बाब पादी साहब हम देखें पहली आयत से 6 आयत तक, तो वहाँ लिखा है पौलुस रसूल ने मनादी करते वक्त मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इफसस में आया तो वहाँ कई शागिर्द थे। उन शागिर्दों से कहा, क्या आपने रूहुल कुद्स पाया? उन्होंने कहा, हमने तो सुना भी नहीं सुना भी नहीं। कि रूहुल कुद्स तो नाज़िल। फिर पौलुस रसूल ने जी शागिर्दों को कहा, जब पौलुस रसूल ने उन पर हाथ रखे जी जी। तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ। लिखा है और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। ये तकरीबन 12 लोग थे। रूहुल कुद्स चीज़ों को जन्म देता है Praise God. और रूहुल कुद्स के वसीला से पादरी साहब कलीसिया ने जन्म लिया है। और रूहुल कुद्स के वसीला से आप देख लें, आप कंप्यूटर को भी डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। मेरे बस की बात नहीं कि मैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करूं, लेकिन Right. 120 लोगों पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। 10 अरब के करीब है लोग। 120 ने रूहुल कुद्स के वसीला से मनादी की। वाह वाह। मैं कहता हूँ पढ़े लिखे लोग कलीसियों में दुनिया में हैं, खुदा का शुक्र है। इनके पास डिग्रियां हैं, मुबारक हो। इनके फलसफे मुबारक हो। लेकिन रूहुल कुद्स की मुनादी वाह। 120 लोगों ने की और पूरी दुनिया में फैल पूरी गई। दुनिया में। बिल्कुल। आज मिलियन 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 लोग बिल्कुल बिल्कुल। रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा उनकी कलीसिया में बहुत शामिल अच्छा, है। एक बहुत बात ये भी याद रखें पादरी साहब, जबरदस्त भाई साहब। जो सुनने वाली है, जी पाकिस्तानी कलीसिया या आलमगीर कलीसिया अंदरूनी और बरूनी इमदाद के बगैर तो जिंदा रह सकती है। वाह वाह। लेकिन रूहुल कुद्स के बगैर नहीं चलता। राशन के बगैर तो जिंदा रह सकती है। जबरदस्त। हालात इसके खिलाफ हों तब भी जिंदा रह सकती है। बहुत अच्छा। लेकिन याद रखें, रूहुल कुद्स के बगैर पाकिस्तानी कलीसिया और ना ही आलमगीर कलीसिया जिंदा रह सकती है। बहुत अच्छा। रूहुल कुद्स वो है जिसने हम नकम्मों को, हकीरों को मुकद्दस लोगों में शामिल किया है। क्या बात। आज हम खुदा की बादशाही के लोग हैं, हम मुकद्दसों में शामिल हैं। रूहुल कुद्स ना होता शायद हम भी अबलीस के हाथ में आज जख्मी और दुख उठा रहे होते हैं। मार खाते। जी जी। रूहुल कुद्स की मेहरबानी से आज हम मुकद्दसों में शामिल हैं और खुदा की खेती में यीशु मसीह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं खुदा की बादशाही के लिए। लेकिन यीशु ने अपने शागिर्दों को ये कहा था, मेरा आसमान पर जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब अगर 13-14 आयत पर हम गौर करें तो खुद फरमाया, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। सच्चाई की राह देखना आम सी बात नहीं। सच्चाई की राह रूहुल कुद्स को जानना है, बेटे को जानना है, खुदा को जानना है। वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए वो अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। आने वाली खबरें रूहुल कुद्स जब आएगा बहुत अच्छा। तुम ताकत पाओगे, कुव्वत पाओगे। यरूशलेम से हरगिज बाहर नहीं जाना। पादरी साहब, हम अनपढ़ हैं जी। या डिग्रियों के मालिक हैं, बहुत अच्छा। इससे कोई
बात सरोकार नहीं है, कोई बिल्कुल। बात ही नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यहूदी रहनुमाओं ने कहा कि ये अनपढ़ में छेरे ना वाकिफ लोग पतरस बाकी शागिर्द जी, जी। ये तो अनपढ़ हैं, जी, जी, हम इन्हें जानते वाकिफ हैं, लेकर ये खुदा की बादशाही की बातें करते हैं, यीशु के जिंदा होने की बातें करते हैं। जी 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 लेकिन रूहुल कुद्स जब आएगा तो फिर डिग्रियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम खुदा का करें। शुक्र है। लेकिन यीशु ने कहा वो तुम्हें आने वाली खबरें भी बताएगा, यानी आइंदा की खबरें भी तुम्हें बताएगा। अच्छे सहाफी होगे तुम, वाह वाह आपके अच्छे सहाफियों में आपका नाम शामिल किया जाएगा। फलक साहब मजा आ रहा है आज आपकी गुफ्तगू बड़ी आला। बस ये रूहुल कुद्स की बात आमीन, है। आमीन। रूहुल कुद्स हम पर मेहरबान खुदा हुआ का शुक्र है, है, उसने पेंतिकोस्त में हमें भी आमीन। शामिल किया हुआ। आमीन, थैंक यू। हमारी ये क्या बात थी, जी। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है। मुझे भी याद है कि तकरीबन 1987 की बात है, मैं FJ बाइबल स्कूल में संडे स्कूल की ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। सही। तो वहाँ रात को दुआया इबादत होती थी। दुआया इबादत में फ्रंट लाइन में मैं बैठा हुआ था, दुआ में हम खोए हुए थे, किसी को कोई इल्म नहीं था कि कहाँ है। कहाँ हैं। सही। आजकल लाला मूसा में खुदा की खिदमत कर रहे हैं यूसुफ बरकत अच्छे पासबान, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, रूहुल कुद्स मुझ पर भी नाज़िल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको मैं भी एक्सपीरियंस तजुर्बा मैं भी इस बात में शामिल हुआ, ईद पेंतिकोस्त की खुशी में, ईद पेंतिकोस्त की ईद में शामिल हुआ। पादरी साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है, उस वक़्त की आग जो मुझ पर ठहरी हुई है, यीशु मसीह के फजल से वो दिन ब दिन मट्टी के इस खाली बर्तन को वाह। ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर आमीन। रही है। थैंक यू, मैं थैंक यू। शुक्र करता हूँ बहुत शुक्रिया खुदा सर। का, जिसने मुझे ईद पेंतिकोस्त में शामिल करके आमीन आमीन। एक मेरे कदम में इजाफा किया है। थैंक यू। मैं तो कुछ भी नहीं था, वाह वाह। रूहुल कुद्स की मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया मैं जी, पादरी बहुत साहब, शुक्रिया जी। थैंक यू सर। रेवरेंड फलक शेर साहब के लिए खुदा का शुक्र हो। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बरकत हासिल कर रहे हैं और आज का टॉपिक आपकी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा कि आप जानें कि ये वाक़या कोई हादसाती नहीं है। ईद पेंतिकोस्त के दिन जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो ये इत्तफाक नहीं था, बल्कि अंबिया के कहने के मुताबिक, नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक ये सब कुछ हुआ। अभी हम खुदा के खादम जनाब पास्टर पतरस रहमत साहब से इस हवाले से मज़ीद जानेंगे कि वो आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देते हैं। जी बात साहब, बहुत सारी बातें हुई, बड़ी ज़बरदस्त बातें रेवरेंड फलक शेर साहब ने की, आज तो कमाल कर दिया आपने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिर में नाज़रीन तक आप भी खुदा के कलाम की सच्चाइयों को पहुँचाएँगे। जी प्लीज़। पर साहब, यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हो रही है और मैं समझ रहा हूँ कि ये यकीनन लोगों की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के हसूल की तड़प को पैदा करेगा। सही। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे तुमको मिलेगा। हम एक यीशु मसीह की प्रीचिंग में देखते हैं, यीशु ने कहा तुम में से कौन सा वो बाप है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसको सांप दे। यीशु ने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुमको रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। इसका मतलब ये है कि हमारे बाप की नज़र में जो आसमान पर है, रोटी, कपड़े, मकान, खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा अफजल जो चीज़ है वो रूहुल कुद्स है जो बाप हमें देना चाहता है। और यीशु ने यही हमें सिखाया है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को ढूंढो, जो रूहुल कुद्स के बगैर हासिल करना नामुमकिन काम है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जिस तौर से हमें दुआ मांगना चाहिए हम नहीं जानते। बिल्कुल। हम बाइबल को उस वक्त तक नहीं जान सकते जब तक रूहुल कुद्स हमारा उस्ताद ना। वाह वाह, क्योंकि रूहुल कुद्स इसका मुसन्निफ है। बिल्कुल सही। हम उस वक्त तक रूहुल कुद्स की नेमतों को हासिल नहीं कर सकते, उनके बारे में जान नहीं सकते जब तक रूहुल कुद्स हमारे अंदर नहीं आ जाता। बहुत अच्छे, बिल्कुल। और रूह के फल उस वक्त तक हम में से जाहिर नहीं हो सकते जब तक रूहुल कुद्स मुकम्मल तौर पर हमारे अंदर सुकूनत ना करे। हम योएल की किताब में देख रहे थे कि योएल पहले ज़मीनी बरकतों की बात करते हैं और उसके बाद हमारी तवज्जो जो है वो आसमानी चीज़ों की तरफ लगाता है। जी। मैं पतरस की कश्ती का वाक़या जो है उस पर गौर कर रहा था कि पतरस एक वक्त था कि फ़िज़िकल चीज़ों की तलाश में था और सारी रात मेहनत करने के बावजूद मुकम्मल तौर पर नाकाम था। अब खाली कश्ती में यीशु आ गया। वाह, बहुत अच्छे। खाली कश्ती है, नाकाम उसकी जिंदगी है, यीशु उसके अंदर आ गया और अब वो कश्ती यीशु मसीह के इस्तेमाल में आई।
वाह, यीशु मसीह ने उसे फिजिकली बरकतों से भर दिया। प्रेज गॉड, वाह एक कश्ती नहीं, 2 शिप्स, वाह, वहां पर बोट नहीं लिखा बल्कि शिप्स लिखा, 2 बड़े जहाज मछलियों से भर गए। अब जाल पतरस, फटने लगे, बिल्कुल। अब पतरस बड़ा बाशऊर आदमी था, उसने यहां से जज किया कि ये शख्स जो दोपहर के वक्त मछलियां पकड़ने की कुदरत रखता है, यकीनन ये मुझे आसमान की बादशाही में लेकर जाएगा, ये मुझे रूहुल कुद्दस देगा। इसलिए वो उसे और सजदा भी उसने करता क्या किया, हाँ। लिखा है वो सब कुछ छोड़कर, वाह, वो कश्तियां छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। यीशु जो मसीह आहिस्ता आहिस्ता चले गए बाद में। यीशु मसीह के शागिर्दों में बहुत से लोग थे सही, जो आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर चले गए, लेकिन जो आखिर तक कायम रहे उन पर रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ। और जब हम अमाल की किताब पहले बाब की 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत पढ़ते हैं, हमारे पास वक्त कम है कि हम तीनों आयतों को नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पर लिखा है कि ये सारे रसूल वहाँ पर जमा हैं और इनके अलावा भी कुछ लोग हैं। 14वीं आयत में खास तौर पर पढ़ूंगा, यहाँ पर लिखा है ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। मशगूल शुगल से निकला है, हाँ, जिस मशगला जिसे हम कहते हैं, हॉबी इंग्लिश वर्ड इसके है। इंग्लिश वर्ड है हॉबी। बिल्कुल बिल्कुल, हॉबी वो मशगला है जिसको आदमी शौक के लिए करता है। वाह। और पंजाबी का एक मुहावरा है, शौक दा मुल कोई नहीं। वाह, वाह, ਇਹਦਾ वाह। मतलब है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਦੇ ਤੇ जिन्नी ज्यादा मर्जी इन्वेस्टमेंट करनी पवे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कोई परवाह करोगे। नहीं, परवाह नहीं, बिल्कुल, आप अपनी जरूरतों को छोड़ देंगे, वाह, लेकिन अब अपने शौक को, इस शुगल को जरूर पूरा करेंगे। वो मशगूल थे किस काम के लिए जो आगे दूसरे चैप्टर में हुआ है। उनका टारगेट रूहुल कुद्दस का हसूल था, क्योंकि उनके खुदावंद ने उनको आसमान पर जाने से पहले ये तंबी की थी कि यरूशलेम में ही ठहरे रहना जब तक तुमको आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले। जाए। और यहाँ पर मैं एक बात को जो मेरे मोहतरम भाई पारी साहब ने कही कि बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि ये किसी एक डिनोमिनेशन की तालीम है, कई लोग इसको कोई तंजीमी तालीम समझते हैं कि ये मखसूस ग्रो या किसी शायद पेंटिकॉस्टल जमात की तालीम में, ऐसा नहीं है, ऐसा बल्कि नहीं ये है। बाइबल मुकद्दस और ये इंजील यीशु की- मसीह के सारे रसूल, हाँ जी बिल्कुल, सारे शागिर्द और सारी यीशु मसीह की कलीसिया, माँ भी, यीशु मसीह की माँ मरियम बीवी वहाँ भी उसमें शामिल है। मौजूद थी जब वो दुआ में ठहरे। इसका मतलब है यही मुकम्मल कलीसिया है, आमीन, आमीन। और यहाँ से ही कलीसिया की मुकम्मल जो है वो तालीम निकली है। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं पास्टर पतरस, मैं शुक्रगुजार हूँ। बात जी तो चाहते हैं हम इसको आगे भी बढ़ाएं क्योंकि मौजू बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। शुक्रिया नाजरीन, अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त था, नज़ूल रुल कुद्स की पेशन गोइयाँ, हमने कोशिश किया कि आप तक खुदा के कलाम की सच्चाई को पहुँचाया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप PMI टेलीविज़न और ख़ास तौर पर प्रिंस ऑफ पीस को पसंद करते हैं, देखते हैं। पास्टर फलक शेर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ शुक्रगुजार हूँ लाए। जनाब पास्टर पतरस साहब का भी शुक्रिया, पास्टर गुलफाम आपका भी शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वाचिंग PMI टेलीविज़न। Prince of Peace, Prince of Peace.